So hello everyone, this is Akshay here, and today's video we are gonna cover a very important topic of the sorting algorithm, that is the heap sort, right? So before starting ahead, if you are new to this channel, please like, share, and subscribe, and hit the bell icon to get the regular updates. तो ठीक है यार, तो heap sort start करने से पहले first we need to understand what is binary heap और उसे कैसे build कर सकते हैं. So there are two things you need to understand first before directly jumping to the heap sort. That is what is binary heap and how to build a binary heap, right? So I have written some theories here. Make sure to take up your pen and paper and write it down, and then we'll go ahead. We'll resume ahead with the implementation. So this video may be a long video because there will be multiple topics and multiple types that it needs to be discussed to finally reach to the solution of the heap sort. ठीक है. तो binary heap why? तो binary heap की जरूरत क्या पड़ी? तो हमें उसे heap sort में use करना है इसलिए, and to implement a priority heap. Priority heap दो टाइप के होते हैं, min heap and max heap. मिन हीप में क्या होता है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है हम उसे लोएस्ट वैल्यू देते हैं, और मैक्स हीप में क्या होता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू दी हाईएस्ट वैल्यू. अब बस सुनते जाओ, it will make complete sense when we are towards the ending of the video. So please take a pen and paper and keep on jotting down the things. ठीक है, तो बाइनरी हीप एक्चुअली में क्या है? बाइनरी हीप इज एक्चुअली अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, ओके, वेयर ऑल द लेवल्स. अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? उसमें एक कंडीशन है दैट ऑल द लेवल्स मस्ट बी फिल्ड except the last. Like last के पास अपना privilege, it can be filled or may not be filled, but rest all the levels should be filled, right? Last level is what? Where it covers the leaf nodes. Now if the last level is going to be filled, then the second point is that it should be filled in the manner from left to right. If these two conditions are followed in any tree, then that tree is a complete binary tree, right? So if I have given here two examples, the first one is a complete binary tree and the second one is not. Can you differentiate what's the difference in the second one that it is not? Yes, you are right. So here is, if you see in the last level, first of all the levels are completely filled except for the last, and if you have to check for the last one, then you need to see that it should be filled in the left to right. So you can see left is filled, then again the immediate next node is filled, but if you see that this node is missing here, right, it should be filled first, then only you can fill this node, and that is why it is not a complete binary tree, and the first one is okay. So why do we need a complete binary tree to build a heap? Because we need to store this binary heap as an array. What are the advantages? Why can we not use a binary tree where we have the right pointer and left pointer which points to the right and left children? तो इसका advantages देखो यार. Advantage is that first of all, if you use an array, then it's a contiguous memory allocation, right? It will be cache friendly, and then since it is a complete binary tree, then that means the height will be the as minimum as possible, because the formation of skew tree will not be possible in such case. Because if I just show you this tree, can you say that this is a complete binary tree? No, all the levels are not completely filled, and that is why the height of this particular tree will be as minimum as possible, that is log of n, right? Great. ठीक है. Several other things are that unlike there are one more advantage ki unlike linked BT binary tree, where we have to store the pointers for left and right, if we use an array, we don't have to use those extra space for storing the pointers. That is one of the more advantages, and we just need just n cells of array to store this particular n nodes, correct? ठीक है. अब let's say हमने एक binary tree बनाया, but भाई आप कैसे बोल सकते हो यार, मतलब मैं तो ट्री इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो ट्री कैसे दिखेगा array में, right? So let us draw a tree now where the values are given as 10, 20, 30, 40, 50 and 60, right? And जो मैंने यहाँ पे yellow color से लिखा है, those are actually representing the indexes. Okay, so this is the actual array, right? So this array, we draw this tree just to have a understanding, right? In the back end, it is actually using an array data structure. We just draw this tree to explain ourselves, right? You can say that this is nothing but just a pictorial representation, right? An actual data structure that is getting used is an array, right? Okay, so for this 10, 20 and 30 is the children. So let us define some more terminologies. That for a particular index I, can I derive a mathematical formula that where its left children would be present? Definitely I can. For this ith node, the left children will be present 2i plus 1, and for the right children, it will be present on 2i plus 2 index, right? Can we define something for the parent of I? Let's say for this parent of this fourth index node, what is the parent? It is 1, right? So can we define something? Yes, we can. We have to take the I minus 1 by 2, the lower value, the seal value, correct? ठीक है. तो parent of 4, let's do some more examples. So parent of 4,
I can say 4 minus 1 by 2, that is 3 by 2, which will give you as 1, right? So that is why this mathematical formula derives for the parent. Now let us हम left और right के लिए देख लेते हैं. अगर left of 1 को निकाले तो क्या होगा? 2 into 1 plus 1, that gives you 3. So I am saying that the ith node, the left children of 1 will be present at 3. Am I right? So yes, we are right. The left children of 1 will be present at the third index. Similarly, the right children of 1 will be present at fourth index according to the formula, and that's we can see in the representation as well. That's great. So we have some things in our mind, that what is binary heap, why we need it, and what are the advantages if we build it using an array. The tree is nothing but a pictorial representation here, just to make us understand in a more better manner. We have some few terminologies more, the left, right, and parent of I. I hope you are with me till this point. Let us proceed ahead with the next thing. Now we are ready to build a heap, right? So this is a given array, and then you need to find a min heap. So min heap क्या होता है यार, कि हमारे पास सबसे पहले एक छोटी वैल्यू होगी, let's say a, b and c, right? So a should be the minimum, right? Then b should be greater than a, and then c should be also greater than a. तो अगर मैं एक example दूँ तो let's say this is 2, and then this is 10, and then this is 8. Then this is a min heap, right? There is no relation between b and c. ये कुछ भी हो सकता है, but the only condition is that it should be greater than its parent node, and that is it, right? तो अगर हम यहाँ पे देखो, if you're building a min heap, then for this 10, if you can see that the lower nodes 5 is okay, but in the right hand side 20 is greater than 10. So this is actually pointing me to a violation point, right? And how I have built, like I have blindly built this heap using the left and right values. जैसे यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि for this 0 इसका left children कहाँ होगा? 2i plus 1, that is pointing to 1, right? So and first index पे क्या है? 5, so that is why 5 is here. And then इसका right children कहाँ होगा? 2i plus 2, that is nothing but the second index. Second index पे क्या है? 20, so that is why this 20 is there. So I hope we are getting the point that what is min heap and how we have built this tree blindly as of now. This is actually not a min heap. So how can we do? What can we do else such that this tree will behave as our min heap, right? So the idea here is that we'll call a heapify function from the bottommost rightmost internal node to 0. So what I'm saying is, let me find the bottommost and rightmost nodes first of all. So bottommost, I'm saying accept the leaf level, come to the second last level, and go to the rightmost node, that is 20, right? What is the index here? 2. So that means we need to run a for loop for I equals to 2 here, to I greater than equals to 1, I minus minus, right? And for each and every I, we need to call a heapify function. For each I, let me write here. For each I need to call a heapify function. ठीक है, heapify क्या होता है यार? मैं देखो, हमारे पास जो ट्री है यहाँ पे 10 20, मैं यहाँ पे क्या चाहता था? For this 2 I wanted कि यहाँ पे एक छोटा वैल्यू हो, राइट? तो मैं इसके चिल्ड्रन से कंपेयर करूंगा. 20 का चिल्ड्रन क्या है? 8, ओनली 8, राइट? तो मैं इस ट्री को बस कवर करूंगा, इस सब ट्री को, राइट? And I will find कि what is the smallest between this root node at this index 2 and its children. The smallest is 8, right? So I will swap it with the smallest value. So if I do this, then what will my tree will look like? So 10, 5, 2, 4, and this 20 would be swapped with 8. So 8 will come here, 20 will go here, right? So for I equals to 2, the swapping has been done. That is, the heapify has been done. Now for I equals to 1, it would take place. So I will say that I will call again an heapify function. Let's say min heapify for 1, right? And 1 is where the index 1 is present at this point, right? So again I will check in this particular subtree, that which is the smallest. I can see that the smallest is 2, and then I will swap it with the root node, right? If I do this, then my tree will look like 10, 2, 5, 4, 8, and 20, right? And that's it. तो अब हमने इंडेक्स 1 के लिए भी कर लिया, अब हमें 0 के लिए करना है, राइट? इंडेक्स 0 क्या है? यहाँ पे दिस रूट नोड. सो आई विल नाउ कंसिडर दिस पर्टिकुलर सबट्री, द रूट नोड एंड इट्स चिल्ड्रन. I will again see which is the smallest in this. So I will say 10 to n, the 2 is smallest, right? So I will swap 2 with its root value. So now the tree will look like 2 will come here, 10 will come here, 8 remains as it is, 5, 4, and 20 remain as it is. Now if you see that it perfectly follows the property of a min heap, that this at this particular level 2 is there, and the rest of the levels must have the value greater than equals to 2, greater than 2. So definitely 10 and 8 is greater than 2. Now if you verify at this level, then the next level, okay, so there is one point I missed.
that for min hippify function, so whenever we need a swap, we swap from the smallest, जो smallest था उसके लिए हमने जो swap किया, right, तो हम उस पर्टिकुलर नोड के लिए हम रिकर्सिवली वापस से कॉल करते हैं, क्योंकि यार अब देखो मैं इसलिए आपको ये नहीं बताया था ये चीज कि अगर आप यहाँ पे देखो कि 10 जो है एंड द नोड्स बिलो इट आर एक्चुअली स्मॉलर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था. इट इज अगेन नाउ वायलेटिंग अ कंडीशन ऑफ मिन हीप, राइट. तो इसका क्या मतलब है यार कि हमें जिस पर्टिकुलर नोड के लिए हमने स्वैप किया था वैल्यू, राइट, जैसे ये 2 था, राइट, तो अभी भी वहां पर प्रॉब्लम है, राइट, अभी भी वहां पे प्रॉब्लम है. इफ यू सी दिस 2, अगर मैंने 10 को यहाँ स्वैप कर दिया होता, राइट, यहाँ पे, तो दैट मीन्स हमें अभी भी यहाँ पर एक मिनिफाई फंक्शन चलाना पड़ेगा, राइट. सो वेयर वी आर एक्चुअली रिकर्सिवली कॉलिंग द हिपिफाई फंक्शन टू द स्वैप्ड नोड, राइट, स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट वाली थी उस जगह पे हमें वापस से रिकर्सिवली कॉल करना, राइट. सो देयर इज वन मोर स्टेप. आप बस इस ड्राइव को समझो, इसके बाद जब हम कोड लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, राइट. तो ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और करना है, हम यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ इसे, रिकर्सिवली कॉलिंग एट स्वैप्ड नोड. ठीक है, डोंट माइंड माय हैंडराइटिंग गाइस. सो अगेन इसको चलते हैं. तो मुझे कहाँ कॉल करना है? एट द स्वैप नोड, दैट इज दिस 2, राइट. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर एट दिस 2, राइट. तो ट्री हमारे पास क्या हो चुका है? 2, 10, 8, 5, 4 एंड 20. तो यहाँ पे मेरे को एक रिकर्सिव कॉल लगाना होगा, दैट इज 10, 5 एंड 4 में. अगेन मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन है? 4, राइट. सो द 4 एंड 10 वुड बी स्वैप्ड, राइट. 4 एंड 10 वुड बी स्वैप्ड. सो हमारे पास जो ट्री होगी अगेन इट वुड बी 2, 4 and here it will come 10, here it will go 5 and here it will 8 and then 20, right. yes, अगर आप देखो तो यहाँ पे इसके लिए हो गया हमारे पास. अब एक्चुअली में यहाँ पे अब कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मिन हीप को गारंटी नहीं कर रहा है, राइट. तो अब हम चलेंगे i इक्वल्स टू 0 पे, दैट इज एट दिस रूट नोड, एंड आई विल सी दैट अगेन यहाँ पे भी कोई वायलेशन नहीं है. जो स्मॉलेस्ट नोड है वो अगेन अपने रूट पोजीशन पे ही है, राइट. तो वायलेशन चेक करना है क्या तरीका हुआ यार, कि जो स्मॉलेस्ट नोड अमंग किस में फाइंड कर रहे हैं? रूट कॉमा लेफ्ट कॉमा राइट, राइट. वो जो स्मॉलेस्ट नोड है रूट कॉमा लेफ्ट कॉमा राइट में, वो रूट पोजीशन पे है या नहीं? इफ इट हैज रूट पोजीशन नॉट, अगर है देन यू नीड टू स्टॉप, वो एक्चुअली अपना कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका है. अगर नहीं है यू नीड टू स्वैप इट एंड देन अगेन रिकर्सिवली कॉल इट, राइट. ठीक है, तो एक बार वापस से ड्राइव देखते हैं. देखो 20 और 8 के लिए क्या हुआ? 20 बड़ा था, राइट. स्मॉलेस्ट नोड जो है 8 वो अपने रूट नोड पे नहीं है, उस इंडेक्स पे नहीं है, तो इसलिए हमने उसको स्वैप किया एंड अगेन कॉल रिकर्सिवली फॉर दिस स्मॉलेस्ट नोड पोजीशन 8, राइट. तो अगर आप मतलब न्यू ट्री में अगर इस पोजीशन के लिए कॉल करोगे तो अगेन इसके लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन तो है ही नहीं, तो हमारा वो कॉल वहां पे खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब i इक्वल्स टू 2 के लिए हो गया, i इक्वल्स टू 1 पे गए हम. 5 पे देखें, अगेन देखें कि स्मॉलेस्ट क्या था? 2. सो वी स्वैप्ड इट विद द स्मॉलेस्ट नोड 2 हियर एंड देन अगेन वी कॉल इट रिकर्सिवली फॉर द स्वैप्ड स्मॉलेस्ट नोड, करेक्ट. तो मतलब हम किसके लिए कॉल किए? 5 के लिए सबसे पहले कॉल किया, क्योंकि स्मॉलेस्ट नोड कहाँ प्रेजेंट था? यहाँ पे. बट यहाँ पे देखिए इसके राइट और लेफ्ट तो है ही नहीं, तो कंडीशन नलिफाई होगी एंड देन वी प्रोसीड अहेड विद नेक्स्ट इटरेशन. तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नोड था. फॉर i इक्वल्स टू 1 के लिए हम यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं, राइट. तो स्मॉलेस्ट नोड के लिए देखा अगर कोई वायलेशन नहीं है, लेफ्ट और राइट नोड प्रेजेंट ही नहीं है, तो स्मॉलेस्ट वहीं अपनी जगह पे रहा. अब हम चलेंगे i इक्वल्स टू 0 पे, राइट. तो यहाँ पर हमारा कॉल हुआ i इक्वल्स टू 0 पे, इस पर्टिकुलर ट्री पे, राइट. तो इस पर्टिकुलर ट्री पे हमने देखा कि इसमें स्मॉलेस्ट क्या है? 2 है यार, राइट. तो हमने 2 को ऊपर भेज दिया, 10 को उसके पोजीशन पे 8 पे ले आया. ठीक है, अब i इक्वल्स टू इस पर्टिकुलर चीज में यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंडेक्स किसकी थी? इस जगह की स्मॉलेस्ट इंडेक्स थी, राइट. तो हम इस इंडेक्स के लिए वापस से रिकर्सिवली मिनिफाई करेंगे एंड दैट इज व्हाई जब इस इंडेक्स के लिए किया हमारे इस ट्री पर रिकर्सिव कॉल किया इस ट्री पर, तो हमने देखा इस पर्टिकुलर सब ट्री में 10, 5 एंड 4 पे स्मॉलेस्ट कौन है? 4. तो 4 को अपने रूट नोड की जगह पे भेज दिया और 10 को उसके स्मॉलेस्ट जगह पे ले आया, राइट. एंड देन वी हैव दिस फाइनल ट्री एज दिस एंड देन अगेन यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट क्या था? 4. तो इस इंडेक्स पे अगर आप देखोगे तो राइट, तो यहाँ पे 10 के पास अगेन लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन नहीं है, तो उस पे रिकर्सिव कॉल खत्म हो जाएगी एंड दैट इज व्हाट वी हैव गेट अ फाइनल आंसर. नाउ अगर मैं आपको शो करता हूँ कोड मिनिफाई का, आपको डेफिनेटली मेक सेंस होने लगेगा. ओके गाइस, सो दिस इज द सुडो कोड. आई होप आप मेरे साथ अभी तक बने रहे यार. तो हमने मिनिफाई और एक इंट आई कॉल किया, राइट. एंड इन द ग्लोबल थिंग्स वी हैव द एरे, राइट, एंड वी हैव द एक्सेस टू द साइज, राइट. सो हमने लेफ्ट चिल्ड्रन निकाला फॉर दिस ith इंडेक्स, राइट, और हमने राइट चिल्ड्रन निकाला फॉर दिस ith इंडेक्स. ओके, अब हमने चेक कर लिया. अब हमने ये दो इफ एल्स बस इसलिए लिखा है क्योंकि हम बस चाहते हैं ये जो है ये ith इंडेक्स है, करेक्ट. ये जो b है इसका इंडेक्स क्या है? 2i+1 और ये c जो है इसका इंडेक्स है 2i+2 और a b c एक्चुअल वैल्यू है. हमें बस इन तीनों में से जो छोटा है वो निकालना है.
तो हमने स्मॉलेस्ट इंडेक्स एक मेंटेन कर लिया, हमने देख लिया कौन सा स्मॉलेस्ट है। अब हमें बस ये चेक करना था कि वो जो स्मॉलेस्ट है वो एक्चुअली में रूट नोड दैट इज ith इंडेक्स वाला ही नोड है या नहीं। अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है, यू नीड टू स्वैप इट, क्योंकि हमें मिनिफाई का कंडीशन भी वैलिड कराना है, राइट। एंड देन यू कॉल द रिकर्सिव फंक्शन फॉर द स्मॉलेस्ट इंडेक्स अगेन। देखो वही हम ड्राइव में हमेशा बार बार कर भी रहे थे। अब इस पॉइंट पे यार अगर आपको ये जो ड्राई रन मैंने समझाया वो आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करो, एक बार अच्छे से समझो और अब एक बार खुद से ड्राई रन करो फॉलोइंग दिस कोड सूडो कोड एंड माय ड्राई रन व्हिच आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू। यहाँ पे आपका हिपिफाई का फंक्शन हो गया है कंप्लीट। सिमिलरली आप मैक्स हिपिफाई के लिए लिख सकते हो, राइट। मिन में हमने मिन निकाला, मैक्स में मैक्स निकालेंगे और अगेन वी विल रिकर्सिव कॉल फॉर द मैक्सिमम इंडेक्स। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर ले यार। देखो तो हम क्या कर रहे थे हिपिफाई के लिए, हम किसी एक पर्टिकुलर नोड को सिर्फ चेक कर रहे थे, राइट। हम अभी सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर नोड में बस वायलेशन, राइट। ये फॉर लूप वाली बात अभी आप भूल जाइए जो मैंने बताया, राइट। हम बस मान के चल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर नोड पे वायलेशन, राइट। तो अगर उस पर्टिकुलर नोड पे वायलेशन है तो बेस्ट केस तो ये हो गया कि यार उसके में हमें रिकर्सिवली कभी ट्रैवर्स करना ही रहा, वो ऑलरेडी हिपिफाइड था तो O ऑफ 1 हो गया, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी कि हमने जिस पर्टिकुलर नोड पे वायलेशन था अगर हमने उसको सही किया, ठीक है, स्मॉलेस्ट नोड से हमने स्वैप करके सही किया, उस स्मॉलेस्ट नोड पे फिर एक वायलेशन आ गया, फिर उसके फिर से एक वायलेशन आ गया, राइट। तो जितने भी उसके चाइल्ड है, राइट, हमें उन सब के लिए हिपिफाई फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो उस समय के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये तो हो गया बेस्ट। तो वर्स्ट क्या हो जाएगा कि यू विल कॉल फॉर इट्स चाइल्ड देन इट्स फर्दर चाइल्ड until इट्स फर्दर चाइल्ड। तो हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा, राइट। कंप्लीट बाइनरी ट्री में हाइट ऑफ द ट्री क्या आता है, लॉग एन। सिमिलरली जब रिकर्सिव कॉल लगाओगे तो हाइट ऑफ द ट्री को स्टोर भी तो करना पड़ेगा रिकर्सिव स्टैक में, सो इट वुड बी O ऑफ log n अगेन फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, मैंने आपको मिन हिपिफाई समझा दिया कैसे करना है, राइट। और आपको मैंने इसके ड्राई रन से जो हमने ये एक लूप चलाया था यहाँ पे, इस लूप को यूज करके हमने देख लिया कि हम किस तरह बिल्ड हीप कर सकते हैं, बट उसका बैकएंड स्ट्रक्चर जो है मिन हिपिफाई पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा, राइट। तो अगर मैं अब इसका कोड लिखूं, बिल्ड हीप का पूरा कोड लिखूं तो कैसा दिखेगा, तो आई एम सेइंग कि कोड इस तरह दिखेगा यार जो मैंने यहाँ पर लिखा है। फॉर i इक्वल्स टू 2 तो मैं रन करना ही है, बट मैंने उसको अब फिर से मैथमेटिकल फॉर्म में डाल दिया कि मैं इस i इक्वल्स टू 2 के लिए मैं लिख सकता हूँ i इक्वल्स टू साइज माइनस 2/2 i ग्रेटर देन इक्वल्स टू i माइनस माइनस। हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए आप मिनिफाई कॉल करो और ये मिनिफाई का फंक्शन होगा, राइट। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि भैया आप मुझे ये नहीं समझ आया यार आपने साइज माइनस 2/2 कैसे कैसे लाइक डिराइव कर लिया, राइट। तो अगर इस पे आओ, साइज पे आओ, साइज क्या है एक्चुअली में 5 है, राइट, 5 है। अगर मैं इसको करूं ये 5 क्या है एक्चुअली में, ये n-1 इंडेक्स है हमारे एरे का, राइट। n-1 मैं क्या कर रहा हूं, -1 एक बार और कर रहा हूं मैं। तो इसका साइज एक्चुअली क्या हो गया, साइज इसका टोटल नोड्स कितने 6, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं 6 -2/2। अगर आप इसको फॉर्म करो तो कितना आएगा 6 - 2 दैट विल गिव यू एस 4/2 विच विल गिव यू एस 2, राइट। तो यही तो हमारा था वो राइट मोड इंडेक्स जिससे हमें अपना मिनिफाई सारे i इक्वल्स टू इस इंडेक्स से लेके 0 तक के लिए मैं कॉल करना था, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, हमने ये कैसे निकाला, करेक्ट। और आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं यार कि ये जो है, ये जो हमारा नोड है जिसे हमें ट्रांसफर शुरू करना है वो मतलब दैट इज नेसेसरली इज द पेरेंट ऑफ आवर लास्ट एरे इंडेक्स, राइट। तो हमें पेरेंट ऑफ आई कैसे निकालते हैं, हम पेरेंट ऑफ आई होता है i-1/2, लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे क्या है n-1, राइट। तो n-1 हमारा आई हो गया -1/2, ऐसे भी आप समझ सकते हो, राइट। तो इज नथिंग बट कि हम जो लास्ट इंडेक्स है हमारे एरे का उसका हम पेरेंट निकाल रहे हैं और वहां से हमें लेके 0 तक ट्रैवर्स करना है। ये हमारा हो गया यार मैक्स हिपिफाई का कोड और बिल्ड हीप का कोड, ठीक है। बिल्ड हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि if I ask you that what is the maximum number of nodes at height s, then this is the formula that the seal of this bracket is nothing but actually saying the seal like the highest value, right, seal of n upon 2 power h plus 1, ठीक है। अगर मैं ये ट्री बनाऊं, this is the complete binary tree that is for sure, right, and the levels are marked, height is here 0, height 1 and height 2। अगर इस particular height पे मैं बात करूं तो it will be total number of nodes that is the 7/2 plus 1 plus 1, so it will be 7/4, right। so 7/4 का अगर आप seal value निकालो, seal value, right, तो ये क्या आएगा 2, and that is what you can see 2 nodes are there in this level, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी फिर, that we are doing for each and every level, right। तो height equals to sigma of let's say height equals to 1 2 में टोटल लेवल्स कितने हैं log n, correct, log n है, and how many number of nodes are there in
this at particular level it is n by 2 power h plus 1, करेक्ट। और हर एक हाइट पे लेट्स से हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है O of h, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालूं, इस n को बाहर निकालता हूं मैं, n को बाहर निकाला एंड देन आई विल राइट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज इट इज। अगर मैं इसको बाहर निकालूं कांस्टेंट को, राइट, एंड इफ आई राइट इट लाइक दिस कि समेशन ऑफ h इक्वल्स टू 1 टू log n टिल, हम इस इक्वेशन क्या है h अपॉन 2 अपॉन h प्लस 1, मैंने h को यहाँ डाल दिया, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करो इस पर्टिकुलर इटरेशन को, तो ये होता है एक्चुअली 1। आप इसको मैथमेटिकली डिराइव कर लेना, ये 1 के बराबर होता है। एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ हियर इज O of n। ऑल्दो ये आपको लिखने में लग सकता है कि n log n हम ले रहे हैं, right, but it's actually O of n to build a heap। तो ठीक है, मैंने आपके लिए मैथमेटिकली डिराइव भी कर दिया है, आप डायरेक्शन देख सकते हो। तो यहाँ पे s, हम लेट्स से इसको s मान लेते हैं, ठीक है। s को हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन 2h प्लस 1। तो h 1 से लेके log n तक जा रहा है। चलो इसको अब एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो h को अगर 1 रखोगे तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2 स्क्वायर। देन h को अगर 2 रखा तो दूसरी टर्म हो जाएगी 2 अपॉन 2 क्यूब, एंड सिमिलरली इस तरह, राइट। सो लेट अस कैलकुलेट s by 2 नाउ वी आर गोइंग इन द मैथमेटिकल डायरेक्शन, बट इट्स स्टिल नीडेड। s by 2 अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 by 2 square will convert it to 1 by 2 cube, and 2 by 2 cube will be 2 by 2 power 4, and then similarly it will go on, right? Now let us calculate the difference, s minus s by 2. So 1 by 2 square will be there, right? And then what we are doing, that we are differentiating these two terms which have the denominator same. So 2 by 2 cube minus 1 by 2 by whole cube will be 1 by 2 cube plus 1 by 2 power 4 plus 1 by 2 power 5, and so on. And now if you see that this is an infinite GP, this is an infinite GP, right? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a upon 1 minus r. So if you do it, a is nothing but 1 upon 2 squares. 1 upon 2 square minus 1 by 2, it will give you as 1 by 2. So what is it is saying that s minus s by 2 is now pointing to 1 by 2, right? S minus s by 2 will itself be converted to s by 2, and this will be 1 by 2, and 2 and 2 will get cancelled, and I can say that s is now pointing to 1. So that is why I am saying this whole equation will be pointing to 1, and that is why n यहाँ पे एक behind था, तो n star 1 will give you O of n, right? So we have mathematically proved the time complexity of this build heap as well. Now let us move ahead with the heap sort now.